Empower your journey with Accessible Way, a unique channel specially designed for visually impaired. Here you will get all material in accessible format. So stay tuned with us, and for regular updates, subscribe the channel and press the bell icon. Let's get started. Good evening, everyone, and a very warm welcome to each of you. I'm Sonali Rawat, your host, and I'm honored to be here on behalf of Accessible Way, a unique platform especially designed for visually impaired. We all are here to talk about something profoundly important: your dreams, your potential, and path to achieving them. Many of us have faced unique challenges in education. We might have realized that certain fields, particularly mathematics, doors are closed for us. I started Accessible Way because I believe that those doors can and should be opened. Our goal is to bridge the gap, to take out the fear of mathematics, and to make mathematics a powerful tool in your success in your life, in your examinations. So, without wasting single more minute, let's start with discussing challenges which you all are facing. Before that, I will take one more minute as I want to mention certain points and want to ask a question. First, you all are on mute. We will give you enough time to raise your questions and we will try to answer those questions also. Right? So, if you have any queries, any question in between, you can raise your hand or you can put your question in the chat box. You will get the answer in the chat box or I'll try to answer those questions. Right? Second, my question is, how many of you are not comfortable with Hindi language? As I'm asking this why? Because if I'll go in multi-language, I'll go in both languages, Hindi and English, it will consume more time and we don't have that much time. We have limited time and I want to deliver as much as I can. So I'm asking you this question, please, if all of you are comfortable in understanding, not in speaking, only in understanding Hindi, then we can go with Hindi because in registrations form, we had a Hindi option more. So if you all are comfortable in understanding Hindi, then we can go with Hindi. So please, if any of you is having problem with Hindi, so please raise your hand. Shweta, please do let me know if anyone is having problem in Hindi language, with Hindi Sure. language. I'm waiting for 1 minute. I'm giving you time to access your mobile phone screen or your laptop with whichever device you have joined. Please take your time, and if you have problem in Hindi language, then we can switch to both languages. We will speak in both languages, English as well as in Hindi. I think there is no one like who can't. Yeah, there are hand raised. Balaji, and one more. Balaji and Thanuja Garanti. Maybe they can understand only English. Okay, Balaji and Tanuja, I will ask like I won't go completely in Hindi. I will use English term for mathematics and others, but
can we use Hindi as in for language purpose, like mathematical terms, technical terms, we will use only English. So will it be fine with you, both of you? बस इतना कि आप सब हिंदी समझ सकते हो क्या? बस इतना बता दो। अगर कोई ऐसा है जिसको हिंदी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, वो एक बार अनम्यूट करके बता दो बस। Hmm. हाँ, okay, ma'am. Actually, Okay है? Is it oh, okay okay, with ma'am. you? But Hmm. sometimes some things you need to explain in English because Yeah, no problem. What we will do, if you have anything to be explained in English, you raise your hand in the chat, and we will explain it in English also. And okay, that will be okay. Fine okay, with you? yeah, fine. Okay. So Okay, then I think we can go ahead. Yeah. okay. So we can start Excuse me, ma'am. now. Yes. Hello, Solani, ma'am. So, Jassi here. So, I'm Jesse, like, please, can we have questions in the end? no, it's not a question. I'm like, I was saying, can we do English, like Hindi and English? Mixture of Why both. you are comfortable in Hindi, na? I know that you are comfortable in Hindi, so we Yes, can go with Hindi, na? Because if I'll use multiple languages, it will take time, na? It will consume time, and we should utilize our time effectively, na? Okay, right. Okay, ma'am, you can keep okay. it bilingual. Okay. I'll use Hindi, na? I'll use Hindi language. If anyone Yes. has problem, then we will explain it in English also. Okay. Shweta, please mute everyone. Okay, ma'am. Not me. Done. Then okay. So ये आप लोगों ने अभी जो सुना, that was accessible way jingle, which we use for our video on YouTube. Okay. So जैसा यहाँ पर लो विजन्स भी हैं एंड ब्लाइंड्स भी हैं. लो विजन्स कैन सी माई स्क्रीन बट ब्लाइंड्स कैन नॉट. So what is displayed on the screen, I will describe that too, because they should also know. आप लोगों को भी पता होना चाहिए सबको जो भी यहाँ पे ब्लाइंड्स हैं कि स्क्रीन पे क्या डिस्प्लेड है. Okay. So it is a PowerPoint slide. I have presented a PowerPoint slide. It's first slide, and the content I will use screen reader also to read out the content which is written on the PowerPoint slide. Okay, and in between I'll keep on explaining everything. So, okay, let me. New unread messages alert. Speech mode off. Speech mode talk. Okay. So there is, all the slides are of dark blue color and text is written in white color. Okay, so the content which is written, मैं उसको स्क्रीन रीडर की हेल्प से आपको रीड करके बता रही हूँ. फर्स्ट डू लेट मी नो, Shweta, please do let me know whether my screen New unread messages reader alert. speech is okay or not. Like, Kalankenya. should I reduce? Rate 95. No, it's okay. Rate 90. Rate 8. Rate Yeah, rate you 60, just reduce to Rate 60. 55. Rate 50. Rate Yeah, 55. I think now it is okay, right? So the content which is written, this is the title. Welcome to Basic Math Webinar. Organized by Accessible Way. Host Sonali Rawat. Okay, so your host, me, my name is Nali Rawat. Okay, and this is our first slide, and below this content, an image is inserted, which is our Hamda Subhana has which is our YouTube. Sorry, so जो नीचे इमेज है Hamda Sub. वो हमारे एक्सेसिबल वे का एक पेज है जिसपे मेरी इमेज है और राइट हैंड साइड में एक्सेसिबल वे लिखा है मैथ्स फॉर ऑल. सो
let's move to next slide and discuss what are the challenges that you all are facing in respect of mathematics. Okay, Venkatro, for which we all are here. slideshow. Math is not for you, breaking the myth. Math is not for you, breaking the myth. So let's see the content, whatever it is written, then I'll go with the explanation. Bullet the missing tools, bullet the not for you myth, overcoming negative stereotypes. Bullet the missing tools, shortage of accessible materials and trainers. Bullet the Ma has left the meeting. Shweta, please Rupesh enable Nigam. the waiting room. Will it be possible? And actually people are leaving now, that will Yeah. announce. We can't do Okay. anything. Okay. So let's continue. I'll go with start. Math is not for you, breaking the myth. Bullet the not for you myth, overcoming negative stereotypes. Bullet the missing tools, shortage of Revanth has bullet the missing tools, shortage of accessible materials and trainers. Bullet the visualization gap, turning mental images into math concepts. Bullet the hidden math, when numbers are only shown, not spoken. Bullet the need for mentors, lack of guidance from experienced blind mathematicians. So these are the challenges which we usually face in aspect of mathematics. I will compile all these challenges in one go. So people who are born blind are told from young age that mathematics is too visual for them. जो लोग टोटली ब्लाइंड मतलब बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, उनको उनकी यंग एज से ही ये चीज दिमाग में डाली जाती है कि मैथमेटिक्स इज नॉट फॉर यू, आपके लिए नहीं है मैथमेटिक्स. उन्हें पुश किया जाता है कि आप म्यूजिक को ऑप्ट कर लीजिए या फिर किसी लैंग्वेज को ऑप्ट कर लीजिए. बट इट इज अ मिथ. मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ लॉजिक, नॉट ऑफ साइट. जो मैथमेटिक्स है वो लैंग्वेज लॉजिक की है, ना कि साइट की. एंड वी हैव टू चैलेंज देम, वी हैव टू प्रूव देम. ओनली ये सिर्फ हमारे ही हाथ में है कि हम उनको ये चीज साबित कर सकते हैं दैट वी हैव साइट प्रॉब्लम बट आवर विजन इज कंप्लीटली क्लियर. हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है, हमें साइट प्रॉब्लम है, हमें विजन की कोई दिक्कत नहीं है. Right? Then another challenge which we all are facing, that all the material which is available in accessible format is very limited. Like though the YouTube channels, we have very good YouTube channels which are providing teaching on mathematics, right? But those YouTube channels are not accessible for us. Why? Because the content जो वो हमारे जो content वो स्क्रीन पर लिख रहे हैं, they never spoke that, they never speak up that content. वो कोई इक्वेशंस नहीं पढ़ते, आपकी कोई डिजिट्स नहीं पढ़ते, जो स्टेप्स वो लिख रहे हैं वो नहीं पढ़ते. उसकी वजह से हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते प्रॉपरली और हम उसे मिस कर देते हैं. इसीलिए हम उन YouTube चैनल्स को एक्सेस नहीं कर पाते. जो लो विजन्स भी होते हैं रादर, वो भी उनकी स्क्रीन को जूम करके देखते हैं, which is not good for their eyes also, right? And the PDFs that they are providing, that is also not accessible for us. So the material whichever is provided to us are not in accessible format, and whatever is provided in accessible format, that too is in limited content, that too is limited. So next the thing is, बाय बर्थ जो ब्लाइंड होते हैं उनको शुरू से यही बोला जाता है कि मतलब जो ग्राफ्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, वो उनको कभी एक्सप्लेन की ही नहीं जाती हैं, राइट? अगर उनको वो बाय बर्थ एक्सप्लेन की जाए
तो आज की डेट में आपको उनको ये सब प्रॉब्लम्स राहुल नहीं फेस करनी पड़ेंगी, राइट? कि अगर आप लोगों को ज्योमेट्रिकल फिगर्स तभी से बताती जाती कि इस तरह की होती हैं, आप लोगों को उनका एक मेंटल मॉडल दिया जाता, तो आप लोगों को आज की डेट में आके इस चीज के रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती, राइट? उसके बाद जो हमारे को प्रेजेंट किया जाता है, लाइक अगर हम रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं या फिर हम शॉपिंग मॉल्स में भी जाते हैं, तो जो प्राइस टैग्स वहां पे लगे होते हैं, दोज आर नॉट इन ब्रेल्स। सो हमारे लिए वो सब चीजें एक्सेस करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज इज हमारे पास लिमिटेड ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, जो कि ब्लाइंड को पढ़ाते हैं, एंड वी ऑल्सो हैव लिमिटेड ब्लाइंड ट्रेनर्स, ब्लाइंड टीचर्स who can understand the need and challenges which a blind student is facing, right? So these are the certain challenges which we are facing while we are learning maths. जब हम maths learn कर रहे हैं तो हमें इन सारे challenges को face करना पड़ रहा है, right? नेक्स्ट जो हमारे को अब जो और challenges हमारे को आ रहे हैं, let's see those challenges also. The Scribe Challenge, the Scribe Challenge. The Scribe Challenge, why you must know math. The Scribe Challenge. Most of us are preparing for competitive level exams, right? आप सब में से काफी सारे ऐसे हैं यहाँ पर जो competitive level exams की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके सामने जो इस समय करंट चैलेंज आ रहा है सबसे बड़ा, वो है स्क्राइब चैलेंज। लेट्स लिसन कि हमारी स्लाइड पे क्या क्या हमारे पास पॉइंट्स हैं स्क्राइब से रिलेटेड। Bullet the qualification gap, scribes are often less experienced than you. Bullet lost in translation, difficulty in explaining complex symbols, plus, dash, div, times. Bullet the dictation trap, if you don't know the concept, you can't guide the scribe. Bullet time is money, misunderstandings lead to wasted exam minutes. Bullet taking the lead, you are the captain, the scribe is only your pen. Bullet taking the So these are the challenges which we are facing. कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए जो स्क्राइब हमें आज की गाइडलाइंस के हिसाब से लेकर जाना पड़ रहा है, वो हमें 2 लेवल जूनियर लेके जाना पड़ रहा है अपने से। सो अगर आपको बेसिक मैथ्स की नॉलेज नहीं होगी, यू डोंट हैव एनी knowledge of symbols which are available in mathematics, figures, geographical figures you don't understand, then how you will communicate with your scribe? आप अपने स्क्राइब के साथ कैसे उस चीज को कम्युनिकेट करोगे जब तक आपको नहीं पता होगा? लेट्स सपोज आपका स्क्राइब ने बोला we need to find out the percentage 33.33%. When you don't have the knowledge that 33.33% is equals to 1/3, how आप उसको कैसे बताओगे Motorola कि जो क्या लिखना है? क्योंकि आज की डेट में स्क्राइब सिर्फ आपका पेन है, बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस यू कांट, आप उनको ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते चीजों को, कि आप उनको ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, आपको सिर्फ उन्हें बोलना है कि आपको ये लिखना है एंड दे हैव टू राइट, बट फॉर दैट यू हैव to be aware of all the basic terms of mathematics at least. So basic maths की जो knowledge है वो हमारी होनी जरूरी है, right? These are the challenges. Apart from these challenges, हम इतने सारे challenges face कर रहे हैं, लेकिन people are overcoming out of these challenges. People इनसे जो बहुत सारे बच्चे हैं, students हैं, या और भी जो हमारी जनरल लाइफ में भी जो चैलेंजेस आते हैं हमें, उनको ओवरकम कर रहे हैं और उससे आगे निकल पा रहे हैं. सो लेट्स लिसन द एक्सपीरियंस ऑफ दोज candidates. Okay, so I'm playing an audio, just listen to it. First I'll speech mode off.
हाय एवरीवन। सोनाली मैम से कनेक्ट करने से पहले मुझे लगता था कि मैथ सिर्फ पेन और पेपर से किया जा सकता है, बट जैसे जैसे मैंने उनसे क्लासेस लेना स्टार्ट करा मेरी विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गई और आज मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कोई भी क्वेश्चन कोई भी सम माइंड में ही सॉल्व कर लेती हूँ। वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कराते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए गाइड और मोटिवेट करते हैं। उनको अपना टीचर बनाना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था और अगर कोई भी अपनी कॉन की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो आई विल सजेस्ट कि उनको सोनाली मैम को ज़रूर एक बार कनेक्ट करना चाहिए। मेरा नाम मयंक शुक्ला है। मैं लेट ब्लाइंड पर्सन हूँ। जैसे सबका सपना रहता है कि गवर्नमेंट जॉब लेना, वैसे मेरा ही सपना था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट मेन प्रॉब्लम थी मैथ की, कि मैथ में कैसे करूँगा, कैसे क्या, मतलब मैथ के सम में कैसे कर पाऊँगा, एक ब्लाइंड पर्सन मैथ के सम कैसे कर सकता है, इससे मेरे को लगता था कि कैसे क्या। फिर एक दिन किसी ने बोला कि एक बार आप इनसे पढ़ के देखो, तो मैंने फिर सोनाली मैम से पढ़ के देखो, तो मैं सोनाली मैम से पढ़ा और मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जीरो था तो मैम ने मेरे को इतना बना दिया कि मैं मैथ से अब डरता नहीं हूँ। मतलब अब मैं मैथ से ज़रा सा भी डरता नहीं हूँ। और उन्हें जिस तरीके से मेरे को समझाया है कि हर चीज़ को विजुअलाइज करके, कि मतलब अपने हैंड को लेकर अपने हर चीज़ को विजुअलाइज करके, उन्हें टफ चैप्टर भी एकदम इजीली ऐसे समझा दिए कि मेरे को इजीली समझ में आ गया। और उन्हें बेसिक, ऐसा नहीं कि खाली उन्हें बेसिक की चीज़ें बता दी, कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक के सब चीज़ें बताई। तो इसलिए थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यम अग्रवाल और मैं सोनाली मैम का पुराना स्टूडेंट रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई क्योंकि मैं एक लेट ब्लाइंड हूँ, पर मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ जब मैंने सोनाली मैम का कोर्स ज्वाइन किया और उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स, फंडामेंटल्स, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से प्रिपरेशन कराई और कंटेंट भी सारा ऑर्गेनाइज्ड वे में, बहुत सारी पीडीएफ्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और सारा कंटेंट एक्सेसिबल फॉर्मेट में, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रीन रीडर फ्रेंडली हो, तो वैसे कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड किया। और जैसे एक एग्जांपल दूंगा, सिंप्लीफिकेशन के लिए उन्होंने ऑडियो फाइल्स प्रोवाइड की क्वेश्चंस की, ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें, जो कि बहुत प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टिंग से एंड तक मुझे अपने अंदर बहुत चेंज दिखा। स्टार्टिंग में जो लड़का मैथ से डरता था अब मुझे मैथ्स का कोई डर ही नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उल्टा तो मुझे तो लगता है कि वो एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी है इन एग्ज़ाम्स में। तो सोनाली मैम के क्लास के बाद मेरे अंदर चेंज आया और इसके लिए मैं सोनाली मैम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू एवरीवन। हाय, माय नेम इज सानिका। मुझे इस कोर्स में बहुत सारी नई चीज़ें सीखने तो मिली ही, बट पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता था, बट बिकॉज ऑफ ट्रिक्स जो कि मैम ने दिए या फिर अल्टरनेट मेथड्स ऑफ इच टॉपिक, जिसकी वजह से मैं अभी उस टॉपिक के साथ या फिर उन क्वेश्चंस के साथ और ज़्यादा फैमिलियर हो चुकी हूँ, जो मुझे बहुत लेंदी और डिफ़िकल्ट लगते थे। हेलो एवरीवन। मैं सोनाली मैम के मैथ्स क्लासेस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनकी क्लासेस ज्वाइन करने से पहले मैथ्स मेरा बहुत वीक सब्जेक्ट था। मुझे एग्ज़ाम में मैथ्स के क्वेश्चन देख के डर लगता था कि मुझे ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे एंड कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे। मुझे ये मन में हमेशा डाउट था कि क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट मैथ्स को विदाउट पेन और पेपर कर सकता है, क्योंकि साइटेड पर्सन के पास एक बेनिफिट रहता है कि वो पेन और पेपर का यूज़ करके जल्दी कैलकुलेशंस कर सकता है। बट आफ्टर जॉइनिंग हर क्लासेस मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। उनका पढ़ाने का स्टाइल बहुत सिंपल बट प्रैक्टिकल है। वो कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेसिक से लेकर एडवांस तक कराती हैं। इवन उनकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मेरी कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंक्रीज़ हुई है। मैथ के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। अब मैं क्वेश्चंस को पैनिक करे बिना कॉन्फिडेंटली, इवन फन वे में सॉल्व करती हूँ। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर द गाइडेंस, एंड मैं चाहूँगी कि आप और भी लाइफ्स को ऐसे ही गाइड करो और भी लोगों को ऐसे ही बेनिफिट करो। थैंक यू सो मच। So
there were some experiences. आप लोगों के सामने ये कुछ experiences थे जो हमने शेयर किए, just not कि मुझे अपने आप को रिप्रेजेंट करना था. It was like although we all have so many challenges, हमारे पास इतने सारे challenges हैं, but जब बाकी सब उन चैलेंजेस से निकल सकते हैं तो व्हाई नॉट यू, आप भी निकल सकते हैं उन चैलेंजेस से बाहर. इट्स जस्ट यू नीड प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर मेंटोर, राइट? तो आप लोग भी उन चीजों से बाहर आ सकते हैं. आपको अपने अंदर से सबसे पहले फेयर निकालना पड़ेगा मैथमेटिक्स का, क्योंकि जब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स बच्चों को पढ़ा रही थी, एग्जाम्स की तैयारी करवा रही थी, तो जब इनिशियल स्टेज पे बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये होता था, मैम क्या एक विजुअली इम्पेयर्ड मैथ्स कर सकता है? आप हमें कैसे करवाएंगी मैथमेटिक्स? हम कैसे इक्वेशंस को, इतनी लंबी लंबी इक्वेशंस को इमेजिन करेंगे, राइट? आप एक चीज ये सोचिए, जो साइटेड है आज की डेट में, जो साइटेड है वो भी स्विच कर रहे हैं मेंटल मैथ्स की तरफ. दे मतलब वो अपनी विल से कर रहे हैं, और हमारी वो नीड है, हमारी वो पावर है, रादर आई शुड से वो हमारी पावर है, क्योंकि उनको वो करना पड़ रहा है जिससे वो अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट कर सकें. लेकिन हम तो शुरू से ही मेंटल मैथ्स करते आ रहे हैं, हम सारी चीजें अपने माइंड में ही तो कैलकुलेट करते हैं. चाहे हमें कोई चीज ऐड करनी है, चाहे हमें कोई चीज सब्सट्रैक्ट करनी है, कुछ भी, हमारे को टाइम अगर हमें देखना है, तब भी हम सब कुछ अपनी, हमारा तो मेंटल, जो हम मेंटल कैलकुलेशंस करते हैं वो तो हमारी पावर है, तो हम उसको अपनी वीकनेस क्यों बना रहे हैं? दूसरों के कहने से हम क्यों अपनी पोटेंशियल डिफाइन करें, राइट? अच्छा, एक चीज मैंने मेंशन नहीं करी, बट मैं अभी यहाँ मेंशन कर देती हूँ कि आई एम ऑल्सो अ टोटली ब्लाइंड पर्सन. मैं एक लेट ब्लाइंड हूँ, बट राइट नाउ आई एम अ टोटली ब्लाइंड पर्सन. आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स who are preparing for competitive exams, right? And उनको बहुत अच्छे से आप लोगों ने अभी उन लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने. हमें नीड ही नहीं होती कि हम इतनी लंबी लंबी इक्वेशंस को याद रखें, क्योंकि वी हैव शॉर्ट ट्रिक्स. हमारे पास मेंटल मैथ्स के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो कि अभी मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊंगी भी उनमें से, बिकॉज आई वांट कि आप लोग जब ये वेबिनार से जाओ तो कुछ लर्न करके जाओ. उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में और हमारे एग्जाम्स के लिए हमारे मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड. Why it is not working? Okay, sorry. My speech mode was off Speech actually. mode talk. And I was switching my slides and I was thinking why it is not switching. So Math Sadhakni Sheikh has joined the meeting alert. Math runs our world. So this is our fourth slide. Okay. So it is how maths is important in our daily life and other fields also. Math runs our Rahul has Math runs our world. Kokan Mundal has Math runs our Math runs our world. Math is often thought of as just numbers on a page, but it is actually the invisible toolkit we use to navigate the world. Also, it gives us power to manage their own lives without needing to ask for help with every small task. यही चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई, राइट? कि जो मैथ्स है वो हमारी पावर है, वो हमारी वीकनेस नहीं है, कभी नहीं बन सकती, क्योंकि हम मेंटल मैथ्स बचपन से करते आ रहे हैं. साइटेड तो पेपर पेन का यूज करते हैं, नाउ दे आर स्विचिंग टुवर्ड्स मेंटल मैथ्स, बट हम तो वो बचपन से करते आ रहे हैं, तो उसे हमें अपनी पावर बनाना है, अपनी वीकनेस नहीं बनाना. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट. Bullet the morning clock, knowing when to start your day. Bullet the shopping bag, getting the right change at the store. Bullet the perfect recipe, balancing flavors and portions. Bullet the travel map, understanding distance and time. Bullet the fair share, dividing things equally with friends. Bullet no math equals no short list, quant section clears prelims.
So these are the few I have mentioned. These are the few aspects of our life where we need mathematics, जहां हमारे को अपने मतलब मैथमेटिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और भी Jayant has बहुत सारी फील्ड्स हैं। लेट मी स्विच ऑफ माय स्पीच मोड फर्स्ट। speech mode off. ओके, सो और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होती है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग करने के लिए मार्केट में जा रहे हो, शॉपकीपर आपको जो रिटर्न में पैसे दे रहा है, मनी दे रहा है, अमाउंट दे रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको उसने करेक्ट अमाउंट दिया है? यू आर नॉट चीटर, राइट? only if you have knowledge of basic maths at least. I'm not telling like आप लोगों को competitive level की maths आनी ही चाहिए, I'm not saying this, but आपको basic mathematics तो आनी ही चाहिए। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये तो हम यूजुअली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते ही हैं, राइट? अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे शॉपिंग कर रहे हैं, वहां लिखा है आपका 14.28% का आपका डिस्काउंट है, हाउ यू विल कैलकुलेट अगर आपको परसेंटेज नहीं पता होगी? फॉर एग्जाम्पल 700 की आपकी कोई ड्रेस है और उस पे 14.28% का डिस्काउंट वहां पे लिखा है, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि 14.28% मुझे कैसे निकालना है, तो आपको उस ड्रेस की एक्चुअल प्राइस कैसे पता चलेगी? आपको कैसे पता चलेगा कि वो जो ड्रेस है वो आपके बजट में फिट करती भी है कि नहीं करती है? सो अगर आपको ये पता है, 14.28% का फ्रैक्शन भी नहीं पता हो, लेकिन परसेंटेज निकालनी भी पता हो, तब भी आप निकाल सकते हैं। बट अगर आपको ये पता है कि 14.28% इज इक्वल्स टू 1/7, सो आपको सिर्फ 700 का 1/7 निकालना है, विच इज इक्वल्स टू 100। सो 700 माइनस 100, दैट इज आपकी जो ओरिजिनल प्राइस आपको पड़ेगी डिस्काउंट के बाद, दैट विल बी 600 ओनली। सो उसके बाद कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि हमारे को बेसिक मैथ्स आनी कितनी जरूरी है, राइट? आपको हो सकता है बहुत ज्यादा एडवांस लेवल मैथ्स की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपको बेसिक मैथ्स की जरूरत तो हर एग्जाम में ही पड़ेगी। नॉट ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपको हर तरीके के एग्जाम में बेसिक मैथ्स की जरूरत तो पड़ेगी ही, राइट? अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आपको पता है कि आपको रूट में ट्रैवल करने में 2 आवर्स लगेंगे, आपको डेस्टिनेशन पे सही टाइम पर पहुंचना है, देन यू शुड नो एट व्हाट टाइम यू हैव टू डिपार्ट द होम, राइट? डिपार्ट योर होम। सो उसके लिए भी आपको बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, बिकॉज अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, लेट हो जाएंगे, एंड these days time is money. So these are the few importance which we have in our life. अपनी हमारी लाइफ में मैथमेटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने शायद आप लोगों को कुछ समझा पाई हूँ। ओके, लेट्स मेक इट लिटिल इंटरेक्टिव। हम इस वेबिनार को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं, क्योंकि अगर मैं ही बोलती रहूंगी तो मैं भी बोर हो जाऊंगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हम अनम्यूट करते हैं और थोड़े से Q&A हम लास्ट में रखेंगे, ठीक है? जो भी आपके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, बट वी कैन टेक एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस हियर। So Shweta, please unmute. If anyone wants, like, please raise your hand, and if anyone wants to ask till here, अगर आपको यहाँ तक किसी भी चीज में कुछ प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मेरे एक्सप्लेनेशन में कोई इशू है आपको, then do let me know. Okay, just raise your hand and Shweta will unmute you. Otherwise, we will नहीं move तो to हम अगर अनम्यूट कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक कुछ लोग रेज हैंड ना कर पाए, तो दे Okay. कैन अनम्यूट। ओके, तो आप सबको अनम्यूट पे डाल दीजिए। और इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन टिल हियर, अगर कोई शैल, हाँ, और लेकिन ध्यान रखना कि क्वेश्चंस रेज करने हैं, नॉइस रेज नहीं करनी है। ओके, सो क्वेश्चंस अगर किसी के हैं, यहाँ तक कोई अपना एक्सपीरियंस
हमारे साथ शेयर करना चाहता है कि उसको कोई यूनिक इससे हटकर कोई चैलेंज आया है, प्लीज डू लेट शेयर विद अस. Yeah, guys, you can unmute. Please unmute yourself. No one has no question. कोई वो नहीं है, किसी को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करना. मैं Yes, Sonali ma'am. ओके, वन बाय वन. First who had unmuted, please tell your name. It was me, Jesse. Okay, Jaswinder, so please. Okay, just sorry. Yeah. Hmm. Okay, so I just wanted to know. So it's just about math. So like, can I ask you like a question related to some other topic? Like, if I can ask you a question related to reasoning. You may ask it, but in the Q&A session, which will be in the end. But अभी हम क्या ले रहे हैं, अभी जो मैंने challenges और importance discuss किया है, उससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम है, व्हाट आई वांट टू डिलीवर टू यू, वो आप तक नहीं पहुंच रहा है, देन आप मुझे अभी बता सकते हैं. बाकी जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, आप लास्ट में Q&A में पूछ सकते हैं. ओके? Okay, Is it okay? okay. Yeah, is it okay? Like, yeah, okay, ma'am. Like in that case, yeah, I do have a question. Like, ma'am, so like, ma'am, it is easy for me to like calculate, like to multiply and calculate square and square root, addition, subtraction also. Like, ma'am, but there's a thing that is division, ma'am. This is a thing where I like feel like Yes, why not? trapped. Why not? See, division is also the part of basic mathematics. It is not different from that. बेसिक मैथमेटिक्स में हमारे सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं आता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ सब आता है, राइट? सो इट इज नॉट कि आप मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ही फास्ट कर सकते हैं, आप डिवीजन भी फास्ट कर सकते हैं. हमारे डिविजिबिलिटी के बहुत सारे रूल्स हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं. एंड आपको डिवीजन के लिए बेसिकली टेबल्स अच्छे से लर्न होनी चाहिए. एटलीस्ट 30 तक के 30 नहीं तो 20 तक के तो टेबल्स बाय हार्ट लर्न होने चाहिए आपको, राइट? देन ओनली यू विल बी एबल टू डिवाइड फास्ट. ओके जसविंदर? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I got. Thank you. Next. Good evening, ma'am. Good evening. My name is Anmol. Ma'am, Please pardon. Name? sorry, Name? Anmol. Anmol. Okay. Okay, Anmol. Ma'am, I've just completed my class 10th और अभी मैं मतलब my basic maths are pretty clear, but मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब तक तो जैसे हमारे जो हमारा maths होता था, it was not that much lengthy, but from 11th हमारे पास काफी मतलब 2-3 variables equations आएंगी, derivatives आएंगे, तो क्या उसके लिए भी कुछ टूल्स होते हैं जिससे मैं अपने स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड को इम्प्रूव कर सकूं और जो प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकूं? जो आप जैसे जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, आपने 10th तक का अभी तक मैथ्स कर लिया है. 11th और 12th में आपकी लेंदी इक्वेशंस होती हैं, लेकिन आपकी कैलकुलेशन तो वही होती है. आपको क्या करना होता है, जो देखो जो इक्वेशंस होती है ना, उनके हमारे पास, जैसे हम कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में सीखते हैं ये वाली चीज, हमें इक्वेशन कई बार बनाने की जरूरत नहीं होती, हम अपनी इक्वेशंस को अवॉइड कर सकते हैं एंड वी कैन गेट आंसर्स फास्टर. हमारे पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, उन इक्वेशंस को बिना बनाए, हम उन इक्वेशंस को बिना बनाए भी क्वेश्चंस का आंसर्स निकाल सकते हैं. इफ अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, सो द बेस्ट मेथड टू लाइक, क्योंकि हमें अपने माइंड में ही इक्वेशन बनानी पड़ती है, राइट? तो हमारे पास बेस्ट मेथड ये होता है, यूज योर पाम, यूज योर फिंगर. अपना पाम यूज करो, अपनी फिंगर्स यूज करो, उस इक्वेशन को अपनी फिंगर से अपने पाम पर लिखो एंड लाइक आप उस जो आप लिख रहे हो उसके अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट करो, राइट? एंड एटलीस्ट वंस और ट्वाइस रिपीट दैट इक्वेशन. यू विल फाइंड, आपको अपने आप लगेगा कि वो इक्वेशन आपको लर्न हुई है,
राइट। अब एग्जाम्स में क्या होता है, एग्जाम्स में हमारे पास स्क्राइब होता है। तो आपको क्या करना है, आपने जो इक्वेशन बनाई वो इक्वेशन अपने स्क्राइब से कहीं पर लिखवा ली। राइट, आपने जितनी इक्वेशंस बनानी थी वो लिखवा ली। देन आस्क योर स्क्राइब टू रीड दोज इक्वेशंस एंड देन यू नीड टू सॉल्व दोज इक्वेशंस। आपको एग्जाम के टाइम पर उस इक्वेशंस को लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास स्क्राइब होता है, आप उससे लिखवा सकते हो और रीड भी करवा सकते हो। और हमारे पास उस समय रिपीट करने का टाइम नहीं होता। बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना नंबर्स की, देन यू विल फील लाइक आपकी लर्निंग पावर इंक्रीज हो रही है वहां पर। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो ना, उसी चीजों को हमें एग्जाम्स में अप्लाई करना होता है। ओके, जिस तरह से आपको मतलब प्रैक्टिस करोगे वही चीज आप एग्जाम में अप्लाई करोगे, देन यू विल फील चेंज व्हाइल यू विल गिविंग एग्जाम्स। ओके ओके, अनमोल, सो आई मीन्स होप। प्रैक्टिस के टाइम पे हमें मीन्स वी हैव टू टेक अ टाइम और हमें प्रॉपरली उसे अपने पाम पे लिख के या फिर अदर टेक्निक्स हाँ को फॉलो करके हाँ, हम उन्हें लर्न कर सकते हैं। बट एग्जाम के टाइम हम रफ वर्क्स का यूज कर सकते हैं, स्क्राइब्स रफ का वर्क्स का स्क्राइब यूज क्योंकि कर होता है। सकते हैं। यस, श्योर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हमें जब हम, क्योंकि उस समय हर समय हमारे पास स्क्राइब अवेलेबल नहीं होता ना, तो इसीलिए उस समय हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम कितना अपने माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। और एग्जाम्स में कई बार हमें स्क्राइब को लिखवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ओके ठीक है, ओके। सो ओके, लेट्स थैंक टेक यू। अनदर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव टू last question. This is last question. So anyone else want to ask any question? Should we go further then? Shweta, no one is there? हैंड रेस तो नहीं है। Hand raise nahi hai? Okay. Hello, So ma'am. we, Hello, ma'am. right. Tell Ma'am, me your am name. I audible to you? Like, Yes, you are audible. मैम दापेश बात कर रहा हूँ मैं। Hmm. मेरा वैसे ये मतलब अब तक अगर मैं बताऊँ, क्योंकि जितनी भी अब तक आपकी चीज़ सुनी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि मेरा फर्स्ट टाइम वेबिनार ज्वाइन है। क्योंकि अब तक मैंने जितनी भी मतलब पिछले साल से मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी थी, हमने अड्डा 24/7 टेक्स्ट बुक्स बहुत जगह हम लोगों ने मैंने मतलब क्वेश्चंस पढ़े, और इनफैक्ट हमने वहाँ के टीचर्स तक को भी समझाया कि आप हमें ऐसे गाइड करो, बट कुछ चीज़ें भी नहीं हो सकी बिल्कुल भी। क्योंकि मैं एक्चुअली नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड से पढ़ा था, तो टिल 8th तक मैंने मैथ्स पढ़ी थी। उसके बाद फिर मेरा मतलब बिल्कुल अब बेसिक में मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, और ये थोड़ा सा अब काफी अब ये खत्म ही हो गया है मेरा। तो भाई अब मैंने तो अब देखते हैं मैम, अब आपके पास आया, अब तो शुरुआत है, अब देखते हैं कि लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्योंकि अभी तक मैंने 2 एग्जाम्स दिए हैं अभी तक, लाइक, तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कुछ रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है, क्योंकि क्योंकि हमें भी, मैं भी यही सोचता हुआ आया था कि मैथ्स रीजनिंग हमसे हो ही नहीं सकती, चाहे हम लोग कितना भी प्रिपरेशन कर लें आज भी। अब लेट्स सी मैम। डोंट वरी, वी आर हेयर। और आज की वेबिनार से आप कुछ ना कुछ तो सीख कर पक्का जाएंगे। आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को कुछ तो शॉर्ट ट्रिक्स सिखा सकूं जो आप लोगों को इस वेबिनार से सीखने को मिले, और आपको ऐसा ना लगे कि आपके 2 घंटे आपने सिर्फ एक लेक्चर सुना है एंड यू हैवंट लर्नड एनीथिंग। राइट, यस मैम, क्योंकि अभी भी क्योंकि लोग आजकल टेलर फ्रेम्स और लैपटॉप्स लेकर के ही बैठे हैं। अब तो जिसके पास, जिसने 8th तक मैथ्स पढ़ी, अब वो अब टेलर फ्रेम लेना शुरू कर चुका है फिर से अभी उसे। हम भी यही नहीं, चाहते हैं कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम मेंटल मैथ्स यूज करके करेंगे। हम अभी उसी पर आ रहे हैं। I'll explain few tricks, okay? एंड आप लोगों को अब हम नेक्स्ट हम यही लेते हैं, ठीक है? और डोंट वरी, आप ओके मेंटल मैथ्स मैम। अब करना लास्ट सीख क्वेश्चन ये जाओ। था कि लाइक पाम पे किस तरीके से, जैसा आप बता रहे थे कि इस तरीके से लिखो, क्योंकि वो तो मैम ऐसा फिर किस तरीके से हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा वो बस सी, एक्सप्लेनेशन। देखो, हम क्या करते हैं, हम अपनी फिंगर से जब अपने पाम पर लिखते हैं तो हमारा पाम हमारी फिंगर को फील कर रहा होता है। और जब हमारा पाम उसको फील करता है तो हमारा जो उसके सेंसेस होते हैं हमारे माइंड में जाते हैं, और वही इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है। जब हम उस इमेज को 2 बार रिपीट करेंगे
तो हम एक तरह से उसको लर्न कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर है, आप कोई फोन नंबर लेना, ठीक है, एक कोई फोन नंबर लेना, आज इसको ट्राई करके देखना। एक कोई फोन नंबर लेना विच इज नॉट नोन टू यू, ठीक, उस फोन नंबर को 2 to 3 टाइम्स अपने पाम पर लिखना और उसको रिपीट करना, ठीक है, एटलीस्ट 5 टाइम्स उसको रिपीट करना। आप देखना वो नंबर आपको लर्न हो जाएगा, आपको उसको पढ़ के लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले जब हमारे लैंडलाइन फोन्स होते थे तब भी तो हम नंबर्स को लर्न करते ही थे ना, तो अब क्यों नहीं कर सकते हम उन नंबर्स को लर्न, उन इक्वेशंस को लर्न, राइट? यस ओके, मैम। ठीक है, चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे एंड वी विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस। ओके, सो श्वेता प्लीज म्यूट एवरीवन। Yes, done, ma'am. Okay, thank you. So, okay. Speech mode talk. Let's learn some tricks to calculate fast. So, ये वाली स्लाइड भी मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ बिकॉज इस पे एक इमेज इंसर्ट है, ठीक है, लो विजन्स को विजिबल होगा। यहाँ पे हमारा टाइटल है Let's learn some tricks to calculate fast. लेट्स लर्न सम ट्रिक्स टू कैलकुलेट फास्ट। हमने चैलेंजेस देख लिए, हमने इम्पोर्टेंस देख ली। अब ये जो इम्पोर्टेंस है वो उसको हमें करना भी तो है, हमें मैथ सीखनी भी तो है, राइट? तो हम कुछ सीख भी लेते हैं, थोड़ी सी बता पाऊंगी, ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। आप लोग बताना कि आपको अगर और चाहिए देन वी विल प्लान अनदर वेबिनार, बट अभी तो थोड़ी सी ही बता पाएंगे बिकॉज टाइम हमारे पास लिमिटेड है, राइट? अच्छा, ये टाइटल है, इसके नीचे एक Let's learn इमेज some tricks to इंसर्टेड है, वही जो वीडियो हमारा जो एक्सेसिबल वे का पेज है वो यहाँ पर इंसर्टेड है, मेरी इमेज और एक्सेसिबल वे का नाम और लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ सी, मैं बहुत ज्यादा एडवांस पे नहीं जाऊंगी क्योंकि यहाँ आप लोग बेसिक मैथ सीखने आए हो, ठीक, तो मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी, लेकिन आप लोग मुझे बताना कि जितनी मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनमें से क्या सब आपको आती थी, और नहीं आती थी तो कितनी नहीं आती थी, ठीक? सो और अगर किसी भी ट्रिक में कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन रेज योर हैंड। ओके, Revanth लेट्स has left. स्टार्ट। मैं अपना स्पीच मोड ऑफ कर देती हूँ, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू डिस्टर्ब। Speech mode off. ओके, सो लेट्स सपोज अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, किसी भी नंबर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल 78 को अगर हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, हाउ यू विल मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 5, तो 8 मल्टीप्लाई 5 विल बी 40, 0 वी विल राइट इन द राइट हैंड साइड, सबसे राइट हैंड साइड में हम 0 लिखेंगे, 4 हम अपने माइंड में कैरी करेंगे, राइट? देन 7 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 35, 35 हमारी लेफ्ट डिजिट्स हैं बट हमारे पास एक कैरी ओवर भी था, सो हम उस कैरी ओवर को उसमें ऐड कर देंगे, 35 प्लस 4 दैट इज 39। सो अगर हम अपनी अब पूरी डिजिट्स देखें तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट डिजिट हमारी 39 है और राइट डिजिट हमारी 0, सो 390 विल बी योर आंसर। बट इतना हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2 से डिवाइड तो सब कोई हर कोई कर सकता है, राइट? अगर नहीं कर सकता है तो वो भी हम सीख लेंगे, लेकिन 2 से डिवाइड बेसिकली 2 का टेबल सबको पता होता है, तो मोस्टली 2 से सब डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 78 मल्टीप्लाई 5 करने की जगह 78 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि 10 डिवाइडेड बाई 2 तो 5 ही होता है ना, तो हम 5 को 10 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। अब हम 78 मल्टीप्लाई 10, ये तो बहुत ईजी है, 0 ही ऐड करना है हमें। अब 780 sorry 780 divided by 2, right? That we can find fast, 390, 7 divided by 2 that is 7 sorry 2 3s are 6, so 6 will be and 1
will go to 88. It will be 18. 2 9s are 18. So 3, 9 and 0 will be there. हम डिवाइड करना भी सीखेंगे, बट इन दिस वेबिनार नहीं, इस वेबिनार में नहीं, किसी और में, राइट? बट आज मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ, ठीक है? 780 मल्टीप्लाइड 10 डिवाइडेड बाय 2. अब आप इसी को आप कोई और नंबर लो, लेट्स सपोज 84 मल्टीप्लाई 5. आप लोग खुद करके देखो, इसको कर पा रहे हो कि नहीं? मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 2 करा है तो चैट में हैंड रेज करो अपना कि हो पा रहा है. प्लीज, आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन. मेरे को अपनी जो क्लासेस होती हैं उसमें भी अगर आप मेरे स्टूडेंट से पूछोगे तो मुझे सबके माइक्स अनम्यूटेड चाहिए होते हैं, कोई म्यूट पर नहीं चाहिए होता है. तो अभी मैं आप सबको अनम्यूट तो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, आप मुझे अपने आंसर्स चैट बॉक्स में दे सकते हैं. श्वेता, प्लीज मुझे बताना कि आंसर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. So you need to multiply 84 multiply 5. It's just you need to multiply 10 and divide it by 2. No answers till now, Shweta? No. Why? Why no? मतलब अच्छा नहीं. Let them unmute for this if you want answers. I think that will be better. ओके. अनम्यूट कर दो आप फिर. ठीक है, हम इसको इंटरैक्टिव रखते हैं, आप अनम्यूट कर दो. Whosoever wants to participate in these activities that can unmute. Yeah, so who said the answer? 19.5. Venkatraman. What is your name? Venkat. Okay. So, what is your answer? 19.5. No. Okay, you want to multiply 19 multiply 5 you want to do? Ma'am, प्लीज could you repeat the concept? कैसे आपने वो किया था एक बार? ठीक है. ओके. Okay, just we have one hand raised, ma'am. Can we get that first? Samyak has hand raised. Okay, Samyak, please unmute. मैम थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा नेट, तो मैं सुन नहीं पाया था आप जो बता रहे थे ट्रिक का थोड़ा सा. Okay. I'll repeat. So I was saying 78 multiply 5 अगर आपको करना है, then you need not to multiply with 5. ठीक है? आपको क्या करना है? multiply by 10 divided by 2. So 78 multiply 10 will be what? अगर आपको किसी भी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 10, 100, 1000, तो हमें क्या करना होता है? उतने ही नंबर ऑफ जीरोस वहां पे ऐड कर देने होते हैं, राइट? तो 780, अगर हम 78 मल्टीप्लाई 10 करेंगे, देन 780 हमारे पास आ गया एंड डिवाइडेड बाय 2. So 780 divided by 2 will be 360, right? So इसी तरह से आपको multiply 5 अगर कहीं पे भी करना है, then you can go with multiply 10 divided by 2. तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया कि 84 multiply by 5, what will be the answer? Can I say, ma'am? Jaswinder. हाँ. Yes, Jaswinder, you can say. Ma'am, it's 420. Yes, ma'am, 420. 420. So everyone is able to calculate? Yes, ma'am, 420. Okay. Let's take it. जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था, 78 multiply 25. Okay. No, not this one. Let's take okay, 72 multiply 25. ठीक? अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक? 25 से मल्टीप्लाई करना है, then what you will do, right? अभी हमने क्या सीखा? 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई 10 by 2, क्योंकि 10 by 2 हमारा 5 ही तो होता है. 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 100 by 4.
राइट। हमारा नंबर क्या था 72। सो 72 मल्टीप्लाई 25 करने की जगह आप क्या करोगे 72 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 4। 72 मल्टीप्लाई 100 होगा तो हमारी डिजिट क्या बन जाएगी 7200। डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4 1 4 तो 1 आ गया, 3 रिमाइंडर बचा, 32 बना, 4 8 32, so 1800 will be your answer. जब आप 72 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 1800। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड द ट्रिक कि 25 से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करना होता है मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 4। ओके, so let's take the same example. 84 multiply by 25. Do it fast and give me the answer. Ma'am, answer is 2100. Very good. Ma'am, 2100. Good. Everyone else? और कोई आंसर नहीं करना चाहता? इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हो. 2100 में Good. Ma'am, I'm Anyone not else? able to do very fast. No problem. No problem. कोई दिक्कत नहीं है. अगर take your time, but आपको मेथड समझ में आया आपको? मैं प्रॉपर तो yes, अभी समझ नहीं आएगा कि ये सब ट्रिक्स हमने कभी Yes, अप्लाई मैम, नहीं करे कभी भी, प्रॉपर नहीं, तो डिवाइड प्रॉपर का तो अभी मुझे नहीं है और मैम, मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा अभी प्रॉब्लम तो नहीं होता मैम, है। प्रॉपर तो नहीं है मैम। अच्छा, नहीं आपने क्या कर, मैंने क्या बताया, अगर आपको किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना होगा मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका? अभी हो सकता मैम वो है तो आप 1 नहीं 100 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको मैम 25 25 आएगा, है ना? तो इसीलिए हम 25 को 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकते हैं, राइट? तो अब हमारा किसी भी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना? तो इसीलिए हम उसको 25 को 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 4 लिख रहे हैं। अब अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में प्रॉब्लम है देन आपकी प्रॉब्लम क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स की दिक्कत है, आपको बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत है। So you have to learn basic mathematics. So you have to learn basic mathematics. Okay? Okay. Give me a second. Okay. So आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रॉपर आता है? जिनको भी दिक्कत हो रही है ट्रिक समझने में? यस मैम, नहीं आता है मुझे, थोड़ा हाँ, दिक्कत है। तभी वो इसीलिए दिक्कत हो रही है। सो यू Yes, नीड टू ma'am. लर्न मैथमेटिक्स फर्स्ट। सी, आप ट्रिक्स को, शॉर्ट ट्रिक्स को कब इस्तेमाल कर सकते हो? तभी इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको प्रॉपर बेसिक मैथमेटिक्स आता हो, राइट? जब तक आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता होगा तब तक आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं अप्लाई कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, ठीक? अच्छा, एक बात बताओ, एक बच्चे को पहले साइकिल चलाने के लिए दी जाएगी कि सीधा एरोप्लेन चलाने के लिए दे दिया जाएगा? पहले तो साइकिल ही सीखेगा ना बच्चा, राइट? तो पहले आप लोगों को बेसिक मैथ सीखनी पड़ेगी, देन यू कैन गो विद शॉर्ट ट्रिक्स। ओके, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी, बट आप इसको अप्लाई करके जरूर देखना, ठीक है? ओके, शुड आई गो फॉर नेक्स्ट ट्रिक? ओके, यस मैडम। ओके, सो हमने क्या सीखा? मल्टीप्लाई बाय 5 सीखा, मल्टीप्लाई बाय 25 सीखा, ठीक? नाउ वी विल लर्न मल्टीप्लाई बाय 50। अगर हमें 50 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा? सिंपल, 50 क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय 2, राइट? हमने जो पहले करा था 5 के केस में 10 डिवाइडेड बाय 2, 25 के केस में 100 डिवाइडेड बाय 4, 50 के केस में क्या करेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डिजिट्स हमने पहले ली थी उन्हीं डिजिट्स पे इनको अप्लाई करके देखो और आंसर निकल रहा है कि नहीं, मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 86 मल्टीप्लाई 50।
मैम 4300. 4300 4300 4300 मैम। वेरी गुड। दैट मीन्स कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, राइट? चलो, अब ये तो हो गए हमारे 5 डिजिट्स वाले, ठीक। अच्छा, अगर हमें 5 डिजिट वाले नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने हैं तो हमें क्या करना होता है? बहुत सिंपल ट्रिक है, ठीक। हमें क्या करना होता है? अच्छा, 5 × 5 25 होता है, ये तो सबको पता होगा। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, मैं एक ना करके बताती हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का स्क्वायर 625, 35 का स्क्वायर 1225, 45 का स्क्वायर 2025, 55 का स्क्वायर 3025, 65 का स्क्वायर 4225, 75 का स्क्वायर 5625, 85 का स्क्वायर 7225, 95 का स्क्वायर 9025। अब आप ये मत सोचना कि मैं इतने सारे स्क्वायर्स याद करके बैठी हूँ। मैं हाथ के हाथ आपके सामने कैलकुलेट कर रही थी कि हम इनको कैसे निकाल, मुझे क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक पता है, तो मैं आपके सामने इसको कैलकुलेट कर रही थी। मुझे बिल्कुल नहीं ये सारे स्क्वायर्स याद है। हाँ, 30 तक के स्क्वायर्स हमें लर्न करने होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा स्क्वायर्स तो हमारे लिए, इतने सारे स्क्वायर्स तो हम नहीं लर्न कर सकते, राइट? तो मुझे 5 का, 15 का, 25 का पता था, ये तो मैं पक्का बोलूंगी, लेकिन उसके बाद के नहीं पता थे। अब अगर स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक क्या होती है, जिसमें 5 हमारे यूनिट प्लेस पर आता है, राइट? सो 45 का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, तो आप स्क्वायर निकालोगे तो क्या करोगे? आपने 45 जो राइट हैंड साइड की डिजिट्स है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, सब में लास्ट में 25 आ रहा था, ठीक। तो लास्ट राइट की जो 2 डिजिट्स है वो 25 आप अपने पाम पर अपनी फिंगर से लिख लोगे, ठीक। राइट 2 डिजिट्स आपके पास 25 हो गई। हम स्क्वायर किसका निकाल रहे थे? 45 का, राइट? तो 4, अब हमारा 5 का तो हो गया काम, 4 का काम चाहिए हम अब हमें, ठीक। तो 4 की नेक्स्ट डिजिट क्या होती है? 4 देन 5, 4 के बाद 5 आता है, तो 4 × 5 करके सिर्फ आपको यहाँ पे लिख देना है, आपकी लेफ्ट डिजिट्स वो हो जाएंगी। 4 × 5 कितना होता है? 22025 विल बी योर आंसर। इसी तरह से अगर हमें 65 का स्क्वायर निकालना है, राइट डिजिट तो हमारी फिक्स है 25, राइट? 6 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 7, 6 × 7 कितना होता है? 42, तो 4225। ओके, अगर समझ में आया है तो जरा 85 का स्क्वायर निकाल के बताओ मुझे आप सब। 70 to 25. 7225 7225. वेरी गुड। 7225 मैम। अच्छा, 35 का 1225. फटाफट। 1225. 1225. वेरी गुड। 1225 55 का 3025. 3025 मैम। मैम 85 का बताया था, वो 7225 जो था आपने अभी दिया था ना, वो 89 का, सॉरी 89 का। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अच्छा, खाली वेबिनार में सिर्फ इतने ही लोग सीखने के लिए आए हैं? बाकी कोई सीखने नहीं आया, सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए आए हैं क्या? बाकी सारे आंसर्स नहीं मिलेंगे मुझे? और मजा नहीं आ रहा लग रहा है ट्रिक सीखने में, या नहीं मैम सबको अच्छा आती है। है? नहीं मैम ना अच्छा है, मैम, समझ में आया। स्क्वायर्स की तो आपने समझा दी, वो तो समझ आ गया, लेकिन पिछला वाला भी थोड़ा सा नहीं आया। कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे। मैं अभी आपको लास्ट में कुछ और भी बताऊंगी, ठीक है? आप करवा दूंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाकी सबसे भी मुझे आंसर दे दो प्लीज। मैम, एक्सक्यूज मी हम्म मैम, आपने जो अभी बोला था ना पहले, ये तो स्क्वायर वाला अभी आई क्लियर इट मैम। हाँ हम्म हाँ 25 है। लेकिन मैम अभी वो उससे पहले वाला जो कंसेप्ट था ना अपना, कि आपने बोला था कि 100 / 4 ऐसे करना था। हम्म कुड यू एक्सप्लेन इट दैट कंसेप्ट अगेन? अश्लेषा, शुड या बी ओके, मैं आपको एक बार बता देती हूँ, लेकिन अगर और अभी भी दिक्कत होगी तो मैं ना, ये जब मैं सारी ट्रिक्स बता दूंगी उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगी। आप लोग उसका वेट करना, ठीक है? क्योंकि अगर मैं एक ही ट्रिक को बहुत बार रिपीट करूंगी तो मैं ज्यादा ट्रिक्स वो नहीं कर पाऊंगी ना,
ठीक है। यस तो मैं पहले आपका वो बता देती हूँ, वो था मल्टीप्लाई बाय 25। अगर आपको किसी भी नंबर से 25 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइड बाय 4। ठीक है, जैसे 72 मल्टीप्लाई बाय 25 करना है तो क्या करोगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4। 4। ठीक है, तो 7200 हो गया, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो, और डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 1800। ओके, सो 72 मल्टीप्लाई बाय 25 विल बी 1800। ओके, यस मैम, गॉट यस इट। यस मैम। आप समझ में आ गया। अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 10/2 करना है, 25 से मल्टीप्लाई करना है तो 100/4 करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है तो 100/2 करना है। ओके, उसके बाद मैंने 5 यूनिट प्लेस की जो डिजिट्स है उनका स्क्वायर निकालना बताया। अच्छा, ये सिर्फ 2 डिजिट्स पे अप्लाई नहीं होता, ये आपका हंड्रेड्स वाली डिजिट पे भी अप्लाई होता है। 125 का स्क्वायर भी आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद आपको 12 मल्टीप्लाई 13 करना होगा। 12 मल्टीप्लाई 13 करने की भी एक ट्रिक है। 12 का स्क्वायर आप लोगों को शायद पता होगा, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि स्क्वायर सबको लर्न होने चाहिए 30 तक के। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। मल्टीप्लाई 13 करना है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या करना होगा, 12 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 12 दैट इज 156। ठीक, तो हमारा 125 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15625 विल बी योर आंसर। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का कभी आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, जो वन आफ्टर अनदर आते हैं, जैसे 11 12 9 10, ठीक, 7 8 और 55 56। ठीक, जो भी हमारे नंबर्स वन आफ्टर आते हैं उनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक, तो अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, जो स्मॉल वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर कर दो, और जो उसका स्क्वायर कर दो, और जो स्मॉल वाला नंबर है उसी को उसको ऐड कर दो। जो बिगर वाला नंबर होता है ना, जो बड़ा वाला नंबर होता है, उसका सिर्फ ये काम होता है कि वो हमें बता रहा होता है कि हमें जैसे 54 मल्टीप्लाई 56 करना है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, 55 मल्टीप्लाई 56 करना है, तो हमें क्या करना होगा, 55 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, सॉरी, 55 का स्क्वायर प्लस 55। अब मैंने 55 का स्क्वायर निकालना तो बताया था ना, क्या होता है 55 का स्क्वायर, जल्दी बताओ। 55 का स्क्वायर क्या होता है, अभी निकाला था हमने। अभी अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर सकते हो आप लोग अपने आप को। 3025 3025, और उसी 3025 में 55 ऐड कर दो। 3025 में, हाँ, कितना हो जाएगा, 3080, राइट। सो 55 मल्टीप्लाई 56 विल बी 3080। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आप स्क्वायर, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन, मैं बार बार स्क्वायर बोल दे रही हूँ, बट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आप इस तरह से कर सकते हो। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर का 17 मल्टीप्लाई 18 करना है तो क्या करोगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 289 प्लस 17 कितना हो जाएगा, कौन बताएगा मुझे, 306। 306, राइट। सो बस हमें इतना ही करना होता है कंसेक्यूटिव नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। गॉट अनदर ट्रिक, समझ में आई सबको। यस मैम। कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हो आप, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब इससे क्वेश्चन आएगा कि मैम अगर किसी का स्क्वायर नहीं पता होगा तो क्या करेंगे। हाँ, आपने तो बता दिया कि स्क्वायर निकालना है और उसमें वो नंबर को ऐड कर देना है, बट अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे मैम। देखो, सबसे पहले 30 तक के स्क्वायर्स आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे हर हालत में, चाहे बेसिक लर्नर हो चाहे एडवांस लर्नर हो। 30 तक के स्क्वायर्स
और 20 तक के क्यूब्स आपको लर्न करने पड़ेंगे हर हालत में, ठीक। तो अब 30 से ऊपर के स्क्वायर्स अगर हमें निकालने हैं तो हमें क्या करना है? क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं कि हमें अगर 30 से ऊपर के नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं तो हमें क्या करना होगा? आप लोग सब मेरे साथ हो, करनी है ये वाली ट्रिक? यस मैम। एवरीवन? यस मैम। जितने मुझे आंसर्स मिलेंगे उतनी ट्रिक्स मैं बताऊंगी, चलो। Yes, ma'am. मैम। ठीक है। तो अगर हमें 50 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने, ठीक, 50 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने हैं तो हमें क्या करना होता है? 50 के आसपास के नंबर्स अगर हमें स्क्वायर चाहिए, लेट्स सपोज, चल ठीक है, पहले मैं स्टेप्स बताती हूँ, उसके बाद हम करेंगे। सबसे पहले आपका बेस नंबर जो है वो 25 होता है 50 के। अगर 50 के आसपास के नंबर्स के स्क्वायर निकालने, 50 के आसपास के नंबर हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? 30 तक के हमें याद करने पड़ेंगे। 31 से लेकर आप 80 90 तक भी ले सकते हो, लेकिन इतना जाके आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम 100 के पास के नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। तो 80 तक के नंबर्स लेके चलते हैं, ठीक। तो 50 के आसपास पहले बेस नंबर हमारा 25 होता है, ठीक। जो भी हमारा नंबर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 56, अगर हमें 56 का स्क्वायर निकालना है, ठीक, तो हमें क्या करना होगा? बेस नंबर हमारा 25 हो जाएगा, 56 की राइट डिजिट कौन सी है? राइट वाली डिजिट, दैट इज 6, ठीक। 6 का स्क्वायर तो सबको पता होगा 36, तो 36 आपकी राइट हैंड साइड की डिजिट्स हो गई, राइट। अब 36 आपकी राइट हैंड साइड की डिजिट्स हो गई और 25 आपका बेस नंबर है। हमें क्या देखना है कि जो ये 56 है वो 50 से कितना ज्यादा है, ठीक। 50 से कितना ज्यादा है? 6 से ज्यादा है, राइट। तो आप अपने बेस नंबर में उस 6 को ऐड कर दोगे, 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। तो हमारी लेफ्ट डिजिट्स आपको मिल गई 31। 3136 will be your answer. Square of 56 will be 3136. ओके, एक और एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। लेट्स टेक 62, ठीक। 62 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करना होगा? बेस नंबर तो हमारा 25 ही रहेगा। अब हमें देखना है कि 62 जो 50 से कितना ज्यादा है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की डिजिट्स के लिए हमें क्या देखना होता है? राइट हैंड साइड की डिजिट्स हो या लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट्स हो, हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारा जो नंबर है वो 50 से कितना कम है या कितना ज्यादा है। तो 62 तो हमारा 50 से ज्यादा है, राइट। सो 12 कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। तो हम पहले 12 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 144। लेकिन हमेशा याद रखना, राइट हैंड साइड में सिर्फ हमें 2 डिजिट्स ही लिखनी होती हैं। हमारी यहाँ पे कितनी आ रही है स्क्वायर में? 3 डिजिट्स आ रही है, राइट। तो हम सिर्फ 2 डिजिट्स, लास्ट की 2 डिजिट्स 144 था, 44 हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे और 1 को अपने माइंड में कैरी ओवर रखेंगे कि वो हमें ऐड करना है, ठीक। अब जो हमारा 62 था वो 12 ज्यादा था 50 से, तो हम अपने बेस नंबर में उस 12 को ऐड कर देंगे। 25 प्लस 12 व्हाट इज? 37। 37 के इक्वल होता है। और 37 प्लस 1 जो हमारा कैरी ओवर था उसको नहीं भूलना कभी भी। तो 37 प्लस 1 विल बी 38। सो हमारा 62 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3844। 3844। अगर हमारा नंबर 52 है, तो 52 हमारा 52 50 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, राइट। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, हमें राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स लिखनी होती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। अगर ज्यादा है तो कैरी ओवर करोगे, अगर कम है तो उसमें 0 लगा दोगे। तो हमारी राइट हैंड साइड की डिजिट क्या हो जाएगी? 04। हमारी राइट हैंड साइड की डिजिट हो जाएगी। अब हमारा ज्यादा कितना था नंबर? 2 ज्यादा था, तो हम अपने बेस नंबर में 2 को ऐड कर देंगे, दैट इज 25 प्लस 2 27। सो 52 का स्क्वायर कितना हो जाएगा?
2704, 2704। ठीक, ये मैंने आप लोगों को आई थिंक 4 एग्जाम्पल्स या 3 एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को ज्यादा के बता दिया। अब मैं एक एग्जाम्पल आपको 50 से कम का भी बता देती हूँ। ठीक, लेट्स टेक 48। 48 अगर हमारा नंबर है, उसका हमें स्क्वायर निकालना है। अब हमें क्या देखना है कि नंबर 50 से कितना कम या ज्यादा है। यहाँ पर नंबर कम है। ठीक, तो कितना कम है? 2 कम है। 2 कम है तो हम हमारी राइट हैंड साइड की डिजिट क्या होगी? 4 नहीं, 04 होगी, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में 2 डिजिट्स ही लिखनी होती हैं। ठीक, तो 04 हो जाएगी हमारी राइट हैंड साइड की डिजिट। चेंज कहाँ आएगा? जो नंबर हमारा यहाँ पे कम है, 2 कम है, तो हम बेस नंबर में 2 ऐड नहीं करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा बेस नंबर क्या था? 25। 25 माइनस 2 दैट इज 23। सो हमारा 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2304, 2304। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। समझ में आया? रिपीट करूं, एक और एग्जांपल लूं? मैम माइनस वाला नहीं आया। ठीक है, माइनस वाले का एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक, तो कौन सा कौन सा नंबर लें? चलो आप बताओ मुझे, कौन सा नंबर लूं? जल्दी बताओ। 38। 38 लेते हैं। ठीक, तो 38 हमारा 50 से कितना कम है? 12 कम है। राइट, सबसे पहले हमें यही देखना होता है कि हमारा नंबर कितना कम है या कितना ज्यादा है 50 के आसपास के नंबर से। तो 50 से 12 कम है 38। राइट, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। लेकिन राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट्स लिखेंगे? सिर्फ 2 डिजिट्स, तो 44 हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे और 1 हमारा कैरी ओवर रहेगा। राइट, 1 हमारा कैरी ओवर आ गया। अब हमारा क्या था? 38 जो है वो 50 से 12 कम है। राइट, तो 25 माइनस 12 करेंगे, 25 प्लस 12 नहीं करेंगे। अगर नंबर बड़ा होता तो हम उसमें ऐड कर दे बेस नंबर में, अगर हमारा नंबर छोटा है तो हम बेस नंबर में से माइनस करेंगे। तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 13। राइट, बट जो हमारा कैरी ओवर है उसको नहीं भूलना है। राइट, तो हमारा कैरी ओवर कितना था? 1। 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा 38 का? 1444, 1444 विल बी योर आंसर। अब समझ में आया? यस मैम। यस। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चले एवरीवन। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चले। सीखने आए हो ना वेबिनार में? हाँ, या सिर्फ क्लास ऐसी वेबिनार अटेंड करने आए हो? सीखने आए हो ना, तो जल्दी आंसर करो। करें कि नहीं करें नेक्स्ट ट्रिक, या फिर मैं अगली स्लाइड पे चलूं? यस मैम। नेक्स्ट। यस मैम। क्या करना है? नेक्स्ट ट्रिक करना है कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलना है? ये तो क्लैरिफाई करो। नेक्स्ट ट्रिक। नेक्स्ट ट्रिक। यस मैडम, यस। मजा आ रहा है? यस मैम। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट ट्रिक क्या सीखेंगे? ठीक है, एक और मजेदार ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को। अगर हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसकी सारी डिजिट 9 हो। जैसे 9 हो गया, 99 हो गया, 999 हो गया, 9999 हो गया। इस नंबर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, कंडीशन क्या है? जो हम जिस दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर हम 999 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 999 में हमारी कितनी डिजिट्स है? 3 डिजिट्स है। राइट, तो जो आपका दूसरा नंबर होना चाहिए वो या तो 3 डिजिट का होना चाहिए या फिर 2 डिजिट का होना चाहिए। ओके, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता। मतलब जितनी डिजिट हमारी नंबर में है, जो 9 वाले नंबर है उसमें अगर जितनी डिजिट है उसके बराबर या उससे कम का आप दूसरा नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए ये ट्रिक यूज कर सकते हो। ठीक, तो
अगर मुझे 35 मल्टीप्लाई 999 करना है, मैम ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे इसको? 35 मल्टीप्लाई 999, इतने सारे 9। आपको सिंपल क्या करना है, 35 में से 1 माइनस कर दो और लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो। कितना हो गया? 34 हो गया, राइट। अब जो आपका 34 है उसको 999 में से माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? 999 माइनस 34 विल बी 965, राइट। सो ये आपकी राइट हैंड साइड की डिजिट्स हो गई। जस्ट आपको इतना ही करना था। 34965 will be your answer for multiplying 35 multiply 999। इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सब्सट्रैक्शन करना था। नंबर दो, करोगे? यस मैम। ठीक है। 47 मल्टीप्लाई 999, चलो 999 ही लेते हैं। 47 मल्टीप्लाई 999, हु विल गिव मी फर्स्ट आंसर? मैम 46,953। 53, राइट, करेक्ट। 46,953 will be your answer। आंसर यस ठीक है, एवरीवन गॉट द ट्रिक? मैम। क्या करना ma'am. है, जिस नंबर Yes, से ma'am. मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें से -1 कर दो। ये आप 9,999 के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर 9,999 से 99 से मल्टीप्लाई करना है उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक, अंडरस्टूड, गॉट इट? यस मैम। यस मैम। एक और ट्रिक सीखनी है? यस मैम। पक्का? यस मैम। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं मैम। ठीक है। ठीक है, हमने 9 वाली डिजिट्स के नंबर देखे। अब हम देखते हैं 1 वाली डिजिट्स के नंबर। ठीक, ये भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। जैसे 11 का स्क्वायर निकालना है। अब 11 का स्क्वायर मेरे हिसाब से यहाँ पे काफी सारों को पता होगा क्या होता है, 121, राइट। लेकिन उसको हमें लर्न तो होना ही चाहिए, बट ट्रिक क्या है, 11 कितनी डिजिट्स है? 2 डिजिट्स है। तो क्या करोगे, 1 2 1 से स्टार्ट करोगे, जितनी डिजिट है वहां तक लेके जाओगे, 1 2 और वापस डिसेंडिंग में चले जाओ, 1 1 2 1। अब अगर 111 का स्क्वायर निकालना है तो कितनी डिजिट्स है? 3 डिजिट्स हैं। तो कहां तक लेके जाएंगे? 1 2 3, गो डिसेंडिंग, 2 1, डिसेंडिंग में चले जाएंगे। 1111 का निकालना है तो क्या होगा आंसर? 1 2 3 4 3 2 1, आंसर। got it everyone? यस मैम। यस मैम। अनबिलीवेबल ट्रिक। अनबिलीवेबल ट्रिक बट है, ठीक है। किसी भी 11 वाली 1 डिजिट वाली नंबर का स्क्वायर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो। ओके, Excuse me, ma'am. I think we are short of time, so take care of that also. ओके, ठीक है। आगे की वैसे मेरे को एक और बतानी थी, जल्दी से ले लें क्या? हाँ ये हाँ, ट्रिक ओके ले लें, ठीक ओके है। ओके। एक्चुअली मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये वाली ट्रिक आपको यूजुअली नहीं मिलती कहीं पर भी। ठीक, हमने स्क्वायर रूट्स तो निकालना सिखाते हैं हमें सब जने, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर्स के निकालना सिखाते हैं, जैसे 36 मैम बट इसका कुछ 49। नोट्स वगैरह मिल सकता है हमें, लाइक इसका थोड़ा सा पीडीएफ वगैरह? डिस्कस करेंगे, अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे, अभी ये खत्म हो जाए ट्रिक, उसके बाद ही बताते हैं। ओके ठीक है। हाँ, लाइक इन ट्रिक्स का थोड़ा सा, तो फिर उसके बाद फिर ओरली कैलकुलेशन तो फिर हो ही जाएगा मैम। हाँ, मैं बताती हूँ, अभी डिस्कस करते हैं, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ओके, तो हमें 36 का स्क्वायर निकालना आता है, 49 का स्क्वायर निकालना आता है, 121, 144, 625, 576। हमारे ये सब क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, राइट। अभी भी जो हमने निकाले
38 का स्क्वायर हमने क्या निकाला था, आई थिंक 1444 1444 निकाला था जहां तक मुझे याद है, राइट। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट्स निकालने हमें सब सिखाते हैं, लेकिन जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनका क्या करें। 11, 13, 17, 14, 12, हाँ, और इसको यूज करना सिर्फ 50 तक के नंबर्स के लिए। ज्यादा बड़े नंबर्स लोगे तो आंसर्स इनकरेक्ट भी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बट 50 तक के जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके लिए आप आराम से अप्लाई कर सकते हो इस ट्रिक को। जैसे 21, 22, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर्स तो नहीं है आपके, राइट। तो लेट्स टेक कोई सिंपल सा लेते हैं, या क्या ले, 12 ले, 12 चलेगा, ठीक, 12 लेते हैं। तो 12 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्या करना होगा। 12 से छोटा स्क्वायर कौन सा आता है, 9 आता है, राइट। 12 से छोटा स्क्वायर 9 आता है हमारा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है, वो उससे एक्सीड कर जाता है। तो 12 से छोटा स्क्वायर हमारा 9 होता है, किसका होता है, 3 का होता है, राइट। तो 3 हमारी लेफ्ट हैंड डिजिट आ गई। अब आगे इसके बाद क्या होगा, 9, 12 माइनस 9 कितना होता है, 3 होता है, राइट। तो हमारा एक और डिजिट हमें मिल गई, अभी बताऊंगी इसे लिखना कैसे। ये हमारा होल नंबर्स बनेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा ये हमारा, ठीक। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा एक इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शन होता है। तो जो इंटीजर वैल्यू थी, जो हमारा 9 था, वो किसका स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर था, तो वो 3 हमें मिल गई इंटीजर वैल्यू। अब जो नेक्स्ट है हमारा न्यूमरेटर ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 12 माइनस 9 दैट इज 3 हो जाएगा, राइट। अब 9 के बाद और 12 से बड़ा स्क्वायर सबसे पहला कौन सा आता है, 16 आता है, राइट। 4 का स्क्वायर 16। अब 16 माइनस 9 कर दोगे कितना होता है, 7 होता है, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 होल 3/7। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आती है ये वैल्यू, 3 होल 3/7। एक और एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ, लेट्स टेक 18, ठीक, 18 लेते हैं। 18 से पहला स्क्वायर हमारा कौन सा आता है, 16 ही आता है, अभी देखा था हमने। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। 4 हमारी इंटीजर वैल्यू आ गई, राइट। अब 16, 18 माइनस 16 कितना होता है, 2 होता है, राइट। तो 4 होल 2 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा। अगर किसी को मिक्स फ्रैक्शन आता नहीं है लिखना, कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अभी उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक। तो 18 माइनस 16 दैट इज 2, और 16 के बाद नेक्स्ट स्क्वायर कौन सा होता है, जो 18 से सबसे पहला बड़ा स्क्वायर होता है, वो होता है हमारा 25, राइट। 25 माइनस 16 कितना होता है, 9 होता है, राइट। तो हमारा स्क्वायर कितना बन गया, स्क्वायर रूट कितना हो गया हमारा 18 का, 4 होल 2/9 विल बी योर आंसर। ये स्क्वायर रूट ऑफ 18 आ जाएगा आपका। अगर डेसिमल में निकालना चाहते हो तो 2/9 कर दोगे तो पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.22, राइट। 4.22 विल बी योर आंसर। गॉट द ट्रिक, समझ में आई। थोड़ी सी ट्रिकी है, जो बेसिक लर्नर्स हैं हो सकता है शायद उनको नहीं समझ में आई हो, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं आई होप उनको समझ में आई होगी, एंड दे वुड हैव लर्न समथिंग न्यू। एटलीस्ट नाउ you can answer. Yes, ma'am. I got it. Got it? Yes, Anyone ma'am. else? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, अब हम ये ट्रिक्स अपनी यहीं पर बंद करते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। कुड आई नो द टाइम प्लीज, टाइम क्या हो रहा है, 5:47। 5:47। ओके, लेट्स रश टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अभी मैं म्यूट पे कर दूं सबको। हाँ, Speech mode talk.
ठीक, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हमने चैलेंजेस देख लिए, हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स देख ली, हमने कुछ ट्रिक्स भी लर्न करी। आई होप आप लोगों ने लर्न करा होगा कुछ तो नया। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इन ट्रिक्स को और सीखने के लिए, इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, what I have decided to launch a Bhavna Agarwal basic maths course. Okay, basic maths course which maybe मैं May month में start करूंगी. So what are the details of that course? Let's see that. What are the topics which I want to cover in that course? Let's see that. Mathematical empowerment within 2 months. Bullet types of numbers. Bullet basic. So ये क्या है, आपका 2 months का कोर्स रहेगा। इसमें हम टॉपिक्स क्या क्या कवर करेंगे? Bullet Vedic mathematics. Bullet types. Wait. Mathematical empowerment within 2 months. Bullet types of numbers. टाइप्स ऑफ नंबर्स में हमारे क्या आते हैं? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, डेसिमल्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, कंसेक्यूटिव नंबर्स, जितने भी तरीके के नंबर्स होते हैं हम वो सब Uma has तरीके left. के नंबर्स इसमें पढ़ेंगे, जो Uma कि has- आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हमें पता होने चाहिए, राइट? डे टू डे लाइफ में शायद हम ना भी यूज करें, बट हाँ, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स तो हमें अपने डे टू डे लाइफ के लिए भी पता होने चाहिए, बट कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए ये नंबर्स का जो कैटेगराइजेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, मेंस के क्वेश्चन में वो आपको दे Balaji. देंगे परफेक्ट नंबर्स। अगर आपको पता ही नहीं है कि परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद आप उसका आंसर नहीं कर पाओगे। सो टाइप्स ऑफ नंबर्स, मैं ये कोर्स कैसे डिजाइन कर रही हूँ कि आप लोगों को बेसिक कराऊं, लेकिन इस तरह से प्रिपेयर कर दूं कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए आप लोगों का बेस तैयार हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी Bullet basic mathematical operations. Basic- Addition, subtraction, multiplication, division, BODMAS. इसमें हम बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑल्सो, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे, प्लस बॉड मास पढ़ेंगे। Bullet Vedic mathematics. वैदिक मैथमेटिक्स, हमारी पावर, जो कि आजकल साइटेड भी यूज करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है? मेंटल मैथ्स, हमारे को अपने दिमाग में, हमने जैसे अभी कैलकुलेट करा, यही वैदिक मैथ्स होता है। ये सारी ट्रिक्स आपकी वैदिक मैथ्स की अंदर आती हैं, जिसमें Mehak Gil. मैं आप लोगों को कुछ दिखा One देती हूँ। split method. स्प्लिट मेथड, अगर हमें एडिशन करना है, फॉर एग्जांपल हमें 328 प्लस 475 करना है, तो हमें पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर्स हंड्रेड्स प्लेस पे है उनको ऐड कर दो, जो टेंस प्लेस पे है उनको ऐड कर लो, और जो वंस प्लेस पे है उनको ऐड कर लो। दैट्स इट, दिस इज स्प्लिट मेथड। वो हम अपने कोर्स में सीखेंगे। 2 squares. स्क्वायर्स हमने अभी निकालने सीखे, बट हमने कहाँ तक सीखे? सिर्फ अराउंड 50 तक के सीखे। अराउंड 100, अराउंड 200, अराउंड 300 हम सारे सीखेंगे। 3 square roots. स्क्वायर रूट्स एक ट्रिक मैंने अभी आप लोगों को बताई, बट जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट्स 4 निकालने। cubes. क्यूब्स, 5 cube roots. क्यूब रूट्स, Bullet fractions and decimals. फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अभी जो हमने पढ़ा मिक्स्ड फ्रैक्शन पढ़ा, जो हमारा स्क्वायर रूट आया था वो क्या आया था? मिक्स्ड फ्रैक्शन में आया था, 4 होल 2/9, राइट? तो इट वाज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये भी हम पढ़ेंगे अपने, और बहुत एक्सेसिबल वे में पढ़ेंगे इसको, कि मैं आपको इमेजिन भी करवाऊंगी कि इसको लिखते कैसे हैं। जो पहले से बाय बर्थ ब्लाइंड है उनको नहीं पता होगा, तो मैं उसको अच्छे से इमेजिन भी करवाऊंगी। Bullet factors. फैक्टर्स, जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के Bullet लिए। LCM and HCF. एलसीएम और एचसीएफ से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स में। Bullet measurement. मेजरमेंट, अगर हमें ये नहीं पता होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स होता है, ये तो हमें अपनी डेली लाइफ के लिए भी पता होना चाहिए कि मेजरमेंट्स का कन्वर्जन, राइट? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, 1 लीटर्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, ये सब हमें पता होनी चाहिए। Bullet percentages, ratio, and proportion.
परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मैंने क्या बताया था, परसेंटेज तो हमारी डेली लाइफ के लिए भी चाहिए और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के लिए तो ये बेस होते हैं, परसेंटेज और रेशियो. सो Bullet नेक्स्ट, basic shapes. इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक शेप्स, जिसको जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनको Uma has left. लोग बहुत कम पढ़ाते हैं Uma has. शेप्स, राइट. शेप्स हमें बहुत कम समझाई जाती है, बट हम इसको लाइव ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इन शेप्स को समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. रोम्बस. रोम्बस की शेप कैसी होती है? रोम्बस की शेप, आप लोगों ने काजू कतली खाई है, स्वीट डिश होती है काजू कतली, वैसी ही बिल्कुल सेम शेप हमारी रोम्बस की होती है. और इसको और कैसे इमेजिन कर सकते हैं? हम ए लिखते हैं, जो कैपिटल ए लिखते हैं, कैपिटल ए के बीच की लाइन हटा दो, जो ए लिखा उसके नीचे एक वी और लगा दो, एक वी और उसके ऊपर उल्टा वी. ठीक, उन दोनों को जब ज्वाइन कर दोगे दैट इज योर रोम्बस शेप. सो इस तरह से हम बेसिक शेप्स को भी Bullet basic पढ़ेंगे. shapes. सो दीज आर द ऑल टॉपिक्स. अगर आप लोगों को इसमें और कोई टॉपिक इंक्लूड करवाना है तो डू लेट मी नो, कि आप अगर कोई टॉपिक इंक्लूड करवाना चाहते हो उसमें तो आप मुझे जरूर बताइएगा, राइट. अच्छा, आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम इसके कोई प्रैक्टिस फाइल मिल जाएगी क्या? सो वी हैव आवर यूट्यूब चैनल, जो मैंने आप लोगों को स्क्वायर्स निकालने की ट्रिक बताई, अराउंड 50, अराउंड 100, अराउंड 200, अराउंड 300, ये सारी ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं. आप वहां से जाके उनको रिवाइज कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट. और जो बाकी ट्रिक्स मैंने आप लोगों को सिखाई, अभी थोड़ा कम है वीडियोस वहां पर, बट आई विल ट्राई टू अपलोड एज सून एज पॉसिबल. From मैं Deepak धीरे Ar- धीरे करके, New unread messages alert. धीरे धीरे करके मैं सारी ट्रिक्स को उसमें इंक्लूड कर दूंगी. ओके. सो आप लोग YouTube चैनल विजिट जरूर कीजिए, और ये जो हमारी वेबिनार आज हुई है ये भी YouTube चैनल पे अपलोड की जाएगी. इस वेबिनार से रिलेटेड जितने भी आपके फीडबैक्स हैं, उस YouTube वीडियो का लिंक आपको हमारे एक्सेसिबल वे के व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, राइट. New और unread. उस, एक सेकेंड, लेट मी स्विच ऑफ माई speech mode first, otherwise it will continue Speech to mode off. so आपको जो हमारा YouTube चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में है, वैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन मैं उसको एक बार आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी. प्लस जब ये वेबिनार अपलोड होगी तो उसका लिंक भी मैं आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी. और आप लोगों को इस वेबिनार के फीडबैक्स मुझे उस वेबिनार की जो वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पे, उसमें मुझे उस आज की वेबिनार के फीडबैक्स चाहिए. ठीक है, सबसे चाहिए मुझे, यहाँ पर जितने अवेलेबल हैं, जितने प्रेजेंट हैं, उन सबसे मुझे चाहिए क्या आप लोगों ने कुछ नया सीखा. आपको कोर्स में अगर कुछ भी इंक्लूड करवाना है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो कि कोर्स में आप मैम ये भी इंक्लूड कर दीजिए टॉपिक, आई विल कंसिडर दैट. ठीक, बट वेबिनार से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक्स हैं उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. और हम एक पोल अभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे. आप में से जितने लोग इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप उस पोल में यस और नो का वोट जरूर कीजिएगा. अगर नहीं भी है तो आप नो डाल सकते हैं, देयर इज नो इश्यूज इन दैट. ओके, सो आप लोग वोट जरूर कीजिएगा. और जो कोर्स की डिटेल्स हैं, वेन एवर इट विल बी फाइनलाइज कि हम वो कोर्स कब लेने वाले हैं, मैं कोर्स की सारी डिटेल्स हमारे एक्सेसिबल वे के व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी. So here starts our Q&A session. So we don't have much time, but जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि Q&A हम जरूर लेंगे. आप लोग को जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं मुझे भी जानने हैं, जिससे मैं उन चैलेंजेस को, उनके सॉल्यूशंस निकाल सकूं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं. So श्वेता, प्लीज अनम्यूट एवरीवन फॉर Q&A सेशन.
Shweta, please unmute. Yes, ma'am, they can. Okay. Thank you, Shweta. So if any of you wants to share your experience, कोई challenge जो आपने face किया हो जो हमने discuss नहीं किया, you can share, you can ask your questions, but one by one. Okay? So I'm waiting for your questions. हेलो मैम। Yes. Your name, please. मैम लव कुछ मैं बात कर रहा हूँ मैम। Okay. मैम जैसे यूपीएससी के लिए आप कोर्स चलाते हो कोई, यूपीएससी जो सी सेट के लिए? सी अभी तो ये कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स के लिए नहीं है ये वेबिनार, ये बेसिक मैथ्स के लिए है। अगर आपको यूपीएससी का कोर्स की जानना है तो देन आई लेट यू नो। आप अपना आप एक काम करना, आपको जो वेबिनार का लिंक मिला था उसमें एक व्हाट्सएप नंबर आपको मिला होगा, तो जी आप मैम। उस व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज ड्रॉप कर देना बस कि आई वांट टू लर्न यूपीएससी CSET. Okay? ओके Just थैंक यू। drop a message there. ओके थैंक यू मैम। Okay. Next, please. Sonali ma'am, this is Raju. Yes, sir. Very good evening, and it's Good very evening, nice sir. that your session was really fantastic. Thank you, Uh, sir. I would like to express few things that course is beautiful what you have designed. Out of which I'm chairman of Nakshatrama Trust, and I too attended this course as I want to see how what are the techniques that we can carry forward, because I am also running a group where we have 150 to 160 students, and I learned how to tackle like techniques from you, and it was very nice. And if you could add angles regarding angles, there are some questions in competitive exams where my few students express these Sir, problems actually, recently. sorry, but angles are taught in advanced level courses. Here we will study basic shapes. उन बेसिक शेप्स में मैं ये जरूर बताऊंगी कि एंगल्स होते क्या हैं, राइट? हो उसका एक बेसिक डिस्क्रिप्शन जरूर दूंगी। सॉरी, are you comfortable with Hindi or Yes, should I yes, go I can with understand English? Hindi and English also. Yes. Okay, No worry. so I'll explain angles also there in the basic shapes topic, but the properties of angles like triangles properties and other shapes properties, that we will study in advanced level course, because in 2 months course it won't be possible to add all these things as for this course. People who will be joining, they will be basic learners, so I have to teach them patiently and I have to give time for every topic, and I have to give time for practicing also. So that's why only I don't want to include these angle topics. Otherwise in advanced level course we study all the properties of angles and everything, but in basic course we will study what is angles, right? And basic properties we will learn, but we can't go. Okay, thank you, thank you. And as you are analyzing very well, as you are trying to know the what is the problem with the visually challenged, as you know, as you well know, and you are able to explain very well. So I think if you could take clock also, it would be good for people to understand, because Yes, you that we added can take. everything which are most almost include which are preferably given in competitive exams, except this angles and clock. If that two are covered, even reasoning part also is so much questions will be covered, I hope so. Yes, So that's what I was I can saying. cover clock. I Yeah, can cover wonderful. clock. Yes, Thank I you, have thank you. noted that. Thank Yeah. you. Next, please. Ma'am, am I audible? Yes, you are audible. Ma'am, One I by think, one, please. ma'am, Yes. I think we should include our basic First your in our name, basic. please. First your name, please. Ma'am, my name is Hanish Panchal, and I think we should include in our course interest also, like simple interest and compound interest. It is
also I think we can include in basic course. एक्चुअली ओके, अगर हमारे पास टाइम होगा हमारे बेसिक कोर्स में देन वी विल थिंक ऑफ इट, अदरवाइज इट इज ऑल्सो टॉपिक ऑफ एडवांस कोर्स। ओके, हम बेसिक कोर्स में क्या कर रहे हैं, हम बेसिक कोर्स में एडवांस कोर्स के लिए नीड तैयार कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, रेशियो, मेजरमेंट, वैदिक मैथ्स, दीज आर ऑल द फाउंडेशन ऑफ योर मैथ। इनके बिना आप आगे कर ही नहीं सकते। जब कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप जाओगे वहां पर आपको ये सब चीजों का बेसिक कोई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वहां पे और भी बच्चे होते हैं जिनका लेवल मतलब उस लेवल तक वो कवर कर चुके होते हैं। तो अगर आप लोगों को वो चीज वहां पे समझाई जाएगी देन वहां पर एडवांस लेवल कोर्स का टाइम जो है वो कंज्यूम होगा, एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम होगा। इसीलिए ये बेसिक मैथ्स का कोर्स डिजाइन किया गया है कि जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो अपना फाउंडेशन क्लियर करके चलो। Otherwise, simple interest, compound interest, everything we will study in advanced course. Okay? Yes, ma'am. Okay? Okay, next question. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. My name is Gauri. And ma'am, that session was very nice, and I have learned so many things, whatever I haven't learned before. So, ma'am, just I wanted to say that I will attend your basic class, but I need also math for competitive exam. So, what should I do for that? Okay, stay connected with us. Drop a message. The WhatsApp, message, the contact number you had got in the webinar link with the webinar link registration form. या फिर आप एक काम कीजिए, ओके, डोंट पोस्ट योर मैसेजेस in on that number, just post your messages in the WhatsApp group of Accessible Way. You all have joined that? Everyone is in the Accessible Way WhatsApp group. So Yes, whatever Yes, ma'am. things, whatever concerns you are having, just drop your WhatsApp message there and I will consider all of those. Okay? Yes, ma'am. Okay, Kari? And ma'am, yes, ma'am. And ma'am, what about reasoning? We also face the problem in reasoning. Okay, I'll answer that also in the group because it's a basic maths webinar, so we'll stick to that only. Okay, so reasoning we will take next time. Okay, or you can drop in the WhatsApp group. Okay, Gauri? Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Welcome. Next question. Ma'am, excuse me. Ma'am, good evening, first of all. Good evening. Ma'am, ma'am, side by side banking and with other exams like MPSC. For that, Ashlesha ma'am. For that, ma'am, it will be help for me to, because I'm on basic way, so it will be help to me to prepare for the MPSC, or what should you teach for this? Ashlesha, if you are facing problem in calculations like these topics, I think these topics are clear to you, isn't it? अगर नहीं Yeah, है तो ma'am. मुझे बताओ। अगर ये टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं है तो बेसिक मैथ्स का कोर्स ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। वाई? बिकॉज आई थिंक आपको ये सारे टॉपिक्स मेरे हिसाब से शायद क्लियर होंगे, क्योंकि अगर नहीं है डोंट, अगर नहीं है तो हाँ मत बोलना, अगर क्लियर है तभी हाँ बोलना, अगर क्लियर नहीं है डोंट वरी, कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। अगर क्लियर नहीं है
देन यू कैन वोट, डोंट टेल हियर, अपना वोट वहां पर शेयर करना। अभी हम जो पोल डालेंगे कि आपको ये कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर क्लियर नहीं है तभी ये कोर्स ज्वाइन करना, अगर क्लियर है देन डोंट ज्वाइन दिस कोर्स बिकॉज इट इज अ बेसिक मैथ लर्निंग। ओके Yes, ओके अश्लेषा? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll put their hands. We will post a poll in the group. Okay. Next question, please. गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम मेरा नाम अनीता है। हम्म और मैम मैं टोटली ब्लाइंड हूँ और मैंने 8th के बाद से मैथ्स नहीं किया, तो अब मुझे मैथ्स में काफी प्रॉब्लम होती है एग्जाम के टाइम पे भी, मैथ्स और रीजनिंग में। तो मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मैथ्स और रीजनिंग सभी हो, बेसिक्स से भी करना है मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक। हाँ, तो आप पहले ये बेसिक मैथ्स क्लियर करिए क्योंकि आपने अभी 8th तक का ही मैथ्स किया था। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने से पहले आप अपने बेसिक्स कर लीजिए क्लियर, जिससे क्या होगा कि आप जब कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आप कहीं भी लैक नहीं कर रहे होंगे, आपके बेसिक्स यस मैम। क्लियर होंगे। ठीक है? जी मैम। यस ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। No more questions? Can we wind up? मैम एम आई ऑडिबल? Yes, you are. ऋषिका, मेरा क्वेश्चन ये है, जो कोर्सेज आप ऑर्गेनाइज करते हैं वो पेड होते हैं या फ्री? Um, okay. This also I will answer in the group. ठीक है? मैं करूँ ग्रुप में, चलेगा? यस मैम, नो इश्यूज। थैंक ठीक है। यू। वेलकम। Any other questions? Can we wind up now? Shweta, is there any hand raised? No. Okay. So let's wind up. Just one more slide. It is nothing, only a thank you slide. अब कुछ नहीं पढ़ाने वाली मैं आप लोगों को, so don't worry. It is just a thank you slide. Why? Because you all have marked your presence here and made this webinar successful. So I am very thankful to you all. अपनी आप लोगों ने यहाँ पे आए और इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाया। Thank you. So let's go to next slide. Okay. Give me a second. Let me switch on my speech mode. Speech mode talk, thank you. My friends, I know the journey to success can feel overwhelming. You might have been told that math isn't for you, that competitive exams are out of reach. But I'm here to tell you that those narratives are wrong. The path forward isn't easy, but it's absolutely possible, and you don't have to walk it alone. We created Building Your Foundation specifically for you, to take those fundamental skills, those building blocks, and make them your strength. Don't let anyone tell you your potential is limited. Join us, embrace the challenge, and let's bridge that gap together, one step at a time. तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, बट लास्ट में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, दूसरों को अपनी पोटेंशियल बताने का मौका मत दीजिए। यू डिसाइड योर पोटेंशियल कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आपको दूसरों को साबित करना है। ठीक है? आप जब तक अपने माइंड से मैथ्स का फेयर नहीं निकालोगे तब तक आप दूसरों को कभी नहीं एक्सप्लेन कर सकते दैट कि विजुअली इम्पेयर्ड मैथ्स कर सकता है और बहुत एफिशिएंटली कर सकता है, कर भी रहे हैं। आप लोगों ने एक्सपीरियंसेस भी सुने, राइट? सो अपने माइंड से सबसे पहले मैथ्स का फेयर निकालो, बाकी आप लोगों को गाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। आई होप you all have enjoyed the webinar, you all have learned something new. Uma has मुझे left the ऐसा meeting. लगता है आप लोगों ने Uma has सबने कुछ ना कुछ लर्न किया है न्यू, एंड आप लोगों के लिए भी ये वेबिनार फ्रूटफुल रही हो, आई होप सो। यू ऑल कैन लीव। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।